بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب اسمبلی میں بجٹ گرانٹس کی منظوری۔ پنجاب حکومت کے 131 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے 339 کھرب 67 ارب 34 کروڑ 48 لاکھ 65,000 مالیت کے 131 مطالبات زر اور فائنانس بل کی منظوری دے دی ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی گئی، جبکہ اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، پنجاب انرجی ڈپارٹمنٹس کے لیے گرانٹس منظور۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ گرانٹس کی منظوری۔ پنجاب حکومت کے 131 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے 339 کھرب 67 ارب 34 کروڑ 48 لاکھ 65,000 مالیت کے 131 مطالبات زر اور فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے گرانٹ کی منظوری مل گئی۔ اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، پنجاب انرجی ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی گرانٹس منظور کر لی گئیں۔ فوڈ سیفٹی، اسکل ڈیولپمنٹ، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے لیے گرانٹس کی منظوری ہو گئی۔ ہیومن رائٹس، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لیے گرانٹس منظور ہو گئیں۔ یوتھ افیئرز، کمیونیکیشن، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے ڈیمانڈ آف گرانٹ منظور کر لی گئی۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں گلیاں پختہ ہو گئی مگر روشنی کا وعدہ تاحال ادھورا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ نامکمل۔ 5,643 گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ بنایا گیا۔ شہر کی 3,295 گلیاں اب بھی اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایم سی ایل 59% گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس نصب نہ کر سکے۔ گلیاں پختہ ہو گئیں مگر روشنی کا وعدہ تاحال ادھورا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ تاحال نامکمل ہے۔ شہر کی 3,295 گلیاں اب بھی اسٹریٹ لائٹس سے محروم۔ فیز 1 کے تحت 5,643 گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق فیز 1 مکمل ہونے کے باوجود صرف 41% ہدف حاصل کیا جا سکا۔ ایم سی ایل 59% گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس نصب نہ کر سکی۔ اب تک 2,348 گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس نصب کی جا چکی ہیں۔ فیز 1 کے کام نامکمل ہونے کے باوجود ایل ڈی پی فیز 2 پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ فیز 1 کی ڈیڈ لائن دسمبر 2025 اور فیز 2 کی جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 137 ارب کے پروگرام میں دیگر اسکیموں کے ساتھ 85,000 اسٹریٹ لائٹس بھی لگنا تھی۔ لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کی گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ پی ڈی ایم اے نے زلزلے کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کی گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ پنجاب کے ضلع ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہیں۔ ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ زلزلے کے باعث کسی بھی نقصان کی اطلاع فوری طور پر پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر دی جائے۔ شہر میں مہنگائی پھر سر اٹھانے لگی۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ، سرکاری قیمت 417 روپے فی کلو مقرر۔ زندہ برائلر کا فارم ریٹ 255، تھوک 269 اور پرچون ریٹ 283 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت میں 2 روپے فی درجن اضافہ۔ دودھ اور دہی کی سرکاری ریٹ قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے مقرر کی گئی۔ مارکیٹ میں دودھ 220 روپے لیٹر میں فروخت، جبکہ دہی 240 سے 250 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہر میں مہنگائی پھر سر اٹھانے لگی۔ برائلر گوشت، دودھ، دہی، سبزیاں، پھل کچھ بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ گراں فروش بازاروں میں من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ شہر میں برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 417 روپے فی کلو مقرر ہے۔ زندہ برائلر کا فارمی ریٹ 255 روپے طے کیا گیا ہے۔ فارم ریٹ زندہ برائلر 255 روپے، تھوک 269، جبکہ پرچون ریٹ 283 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی 2 روپے فی درجن اضافہ ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی قیمت 222 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مہنگے دودھ اور دہی نے شہریوں کا گھریلو بجٹ متاثر کر دیا۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے مقرر کی گئی۔ مارکیٹ میں دودھ 220 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں دہی 240 سے 250 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
प्याज की सरकारी कीमत 90 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 120 रुपए फी किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 150 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 180 से 210 रुपए फी किलो। चाइनीज लहसुन 335 रुपए के बजाय 420 रुपए फी किलो और थाईलैंड अदरक 310 रुपए के बजाय 340 से 380 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में फालसे की सरकारी कीमत 270 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 280 रुपए। सिंदड़ी आम दर्जे अव्वल 237 रुपए के बजाय 350 रुपए। दोशहरी आम 250 रुपए के बजाय 300 रुपए। अनवर रटोल आम 330 रुपए के बजाय 400 रुपए। सफेद सेब 250 रुपए के बजाय 280 रुपए। केला 215 रुपए फी दर्जन के बजाय 250 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद है, जबकि मार्केट में मनमाने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि जिलाई इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। शहर भर में एलपीजी को भी गिरां फरोशों के चुंगल से बचाया ना जा सका। एलपीजी 450 से 500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगी एलपीजी ने घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स को परेशान कर दिया। शहरियों की जिला इंतजामिया पर कड़ी तनकीद, बोले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है। शहर भर में एलपीजी की मनमानी फरोख्त को ताहाल रोका ना जा सका। सूबाई दारुल हुकूमत में गैस माफिया खुलेआम सरगर्म है। सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद हो गया, जबकि मार्केट में एलपीजी 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। महंगी एलपीजी ने घरेलू सार्फिन के बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। खाना पकाना भी अब शहरियों के लिए एक मुश्किल मरहला बन गया, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। महंगी गैस के बाइस आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हो गए हैं। इंतजामिया की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया, जबकि गैस माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। हम बहुत मुश्किल में, एक तो महंगाई है, इतनी गर्मी में घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारा पीछे मरला है, बिल्कुल सुबह के घंटे के लिए आती है, वो भी इतनी होती कि चाय भी नहीं बनती। 600 रुपए किलो मिक्री, कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको। और ये भी हमें नहीं पता चल रहा कौन महंगी दे रहा है, कौन सस्ती दे रहा है। दुकानदार से हम बहस करते हैं, वो वही कहते हैं कि हमें पीछे से प्लांट वाले महंगे दे। अब हम प्लांट पे तो नहीं ना जा सकते, हमने तो दुकान से ही भरवाना है, क्योंकि हमारा घर इधर नज़दीक है। तो इनको गवर्नमेंट वालों को चाहिए कि वो प्लांट वालों को पकड़े, जिसका भी कसूरवार है उनको पकड़े और हमें सहूलत दे। गैस आती नहीं, 7,500 मेरे घर का गैस का बिल है इस वक्त, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और महीने की मेरा ख्याल है 5, 5,500, 6,000 रुपये की गैस जो है ना, मैं बाहर से फिल करवाता हूँ। अगर मैंने वो बाहर से फिल करवानी है, रेंट का मकान है, मैं वो गैस का मीटर उतार के क्या मालिक के हाथ में पकड़ा दूँ? वो ऐसा तो नहीं करेगा, वो कहेगा अपना मकान छोड़ दो। लेकिन हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ कोई नहीं। इन बेचारे दुकानदारों का कोई कसूर नहीं, ये तो छोटा दुकानदार है। असल में जो पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पीछे जो माफिया बैठा हुआ है, उनको कोई पूछता नहीं है। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो महंगाई का ये तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त चेकिंग और गैस माफिया के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। लाहौर में एलपीजी बुरहान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सवाल ये है कि क्या इंतजामिया इस माफिया के खिलाफ एक्शन लेगी या शहरी इसी तरह महंगी गैस खरीदने पर मजबूर रहेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 55 पैसे बरकरार रहेगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगी। कीमतों में कमी न होने पर आवाम परेशान, बोले सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली खबरें बेबुनियाद निकली। पेट्रोल ईरान अमेरिका जंग से पहले वाले रेट पर वापस आना चाहिए। शहरियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपए 55 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर रहेगी। शहरियों का कहना था कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली खबरें बेबुनियाद निकली। पेट्रोल ईरान अमेरिका जंग से पहले वाले रेट पर वापस आना चाहिए। इस पेट्रोल ने कमर तोड़ दी है। घर के किराए और ये पेट्रोल मैं नहीं पूरे कर सकता। अभी भी मेरे आप घर चलें, अब हालात देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल पे कि ये कम होगा सर, ये भी उम्मीद ना उम्मीद रहेगी हमारी।
हम तो देख रहे हैं बड़े अफसरान बाला के आगे, इन हुकूमत के आगे खुदा रहा हमारा सोचे, हम बहुत मजबूर हैं, हम क्या करें। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कम करने की नवीद सुनाई, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं आएगी, रोजमर्रा अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ती रहेंगी। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीम बिल 2026 मंजूर कर लिया, जिसके तहत वफाकी सतह पर रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का निजाम आसान होगा, कानूनी पेचीदगियों को खत्म किया जाएगा। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया, जिसके तहत विफाकी सतह पर रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज शामिल है। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक विफाकी वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को पंजाब में नई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से रजिस्टर्ड मदारिस भी दोबारा रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। बिल में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की दफा 21 में नई शिक A1 शामिल करने की तजवीज दी गई है, जिसके जरिए मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस कानून साजी का मकसद विफाकी सतह पर रजिस्टर्ड दीनी मदारिस की कानूनी हैसियत को वाज़े करना, रेगुलेटरी निजाम को मुअस्सर बनाना और गैर जरूरी इंतजामी रुकावटों को खत्म करना है। कायमा कमेटी की रिपोर्ट अब पंजाब असेंबली के ऐवान में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जबकि ऐवान से मंजूरी के बाद बिल हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम जारी होने के बावजूद HEC से मंजूरी ना ली जा सकी। HEC ने मुतल्लिका जामियात के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिया। नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल से मंजूरी लेने की तलकीन। जामियात बिजनेस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स जारी रखने के बावजूद HEC से मंजूरी क्यों नहीं करवाई गई। HEC ने मुतल्लिका जामियात सरबराहान को नोटिस दे दिया। HEC के नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल से मंजूरी लेने की तलकीन बसूरत डिग्री की तस्दीक न करने और जामियात की एफिलिएशन मनसूख कर दी जाएगी। HEC आला तालीम में मायार, मुताबिकत और बैनुल अक़वामी मुसाबकत को फरोग देता है। एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क क्लीदी डोमेन्स में मुसलसल मायार को बढ़ाने के लिए जामिया तरीकाकार फराहम करता है। मुतअद्दिद बिजनेस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स को NBEAC से एक्रेडिटेशन हासिल करना बाकी है। HEC से इंतबाह किया कि जामियात मुतल्लिका बिजनेस स्कूल, फैकल्टीज, इंस्टीट्यूट महकमे की NBEAC एक्रेडिटेशन हासिल करें। एक्रेडिटेशन हासिल न करने वाले इदारे रेगुलेटरी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे। इदारों के दीगर मुतल्लिका प्रोग्राम्स में दाखिलों को रोक दिया जाएगा। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की ज़ेर क़यादत अदालती निज़ाम में डिजिटल इस्लाहात के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नादरा के इश्तराक से बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया। अब मुकदमा दायर करने से कबल साइलिन की बायोमेट्रिक शनाख्त की तस्दीक लाजमी होगी। वफाकी शरई अदालत में पंजाब हुकूमत का पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 चैलेंज एक आईनी और शरई दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून में शादी के लिए 18 साल की लाजमी उम्र मुकर्रर करना कुरान और सुन्नत की तालीमात से मुतसादिम है। दरखास्त मुफ्ती मोहम्मद असलम की जानिब से आइन के आर्टिकल 203D के तहत दायर की गई। गवर्नर पंजाब, हुकूमत पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दोहरे कत्ल के एक अहम मुकदमे में जदीद टेक्नोलॉजी से हासिल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की कानूनी हैसियत पर तारीखी फैसला जारी कर दिया। करार दिया है कि गैर तरमीम शुदा और फॉरेंसिक से तस्दीक शुदा वीडियो रिकॉर्डिंग फौजदारी मुकदमात में बुनियादी, काबिल एतमाद और फैसला कुन शहादत बन सकती है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुल्जिम की सजा के खिलाफ अपील और मुद्दई मुकदमा की नजरसानी दरखास्त पर मुश्तरका तौर पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रेप और मुबैना जाली शादी के मुकदमे में एक अहम और नजीर साज फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया है कि सिर्फ DNA रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी मुल्जिम को सजा देना महफूज कानूनी तरीका नहीं। DNA शवाहिद महज ताईदी नौइयत के होते हैं। मजबूत और काबिल एतमाद शवाहिद के बगैर उन्हें सजा की वाहिद बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्जिम गुलाम फरीद की अपील मंजूर करते हुए उसे दी गई 25 साल कैद और जुर्माने की सजा कलअदम करार दे दी और फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुलाजमीन से लड़ाई झगड़े का मुकदमा पुलिस ने 6 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने समाअत की। महकमा
बिहार में 16 बेलदारों की जाली भर्ती का मुकदमा। एंटी करप्शन कोर्ट ने अकाउंट्स क्लर्क शेख जाहिर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल बड़ाइच ने समाअत की। कालादम तंजीम के मुबैना रुकन के खिलाफ चंदा जमा करने और नफरत अंगेज लिटरेचर तकसीम करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम साद मंजर को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनी गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी एकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के हक में सादिर सालसी अवार्ड को तस्लीम कर लिया। अदालत ने उसे अदालती डिग्री के तौर पर नाफिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि मौजूदा मुकदमा न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत नफाज के हक में अदालती रुझान की एक और मिसाल है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी खुशशाइंद इक़दाम है। आवाम को जदीद, महफूज और मायारी सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उन्होंने शेखपुरे में इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई की, लेकिन मैंने 4-5 महीने इस पर काफ़ी फोकस किया था। टेलीफोन किए थे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को, मिनिस्टर सेक्रेटरी को, और जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे उनके जो आला अफसरान हैं, उन्होंने कहा था कि जब ये पोर्ट होंगी हम आपको शेखपुरे में हर सूरत बसें देंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया। सीटीओ सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने डिवीजनल एसपीज और सर्कल अफसरान की कारकर्दगी जानने के लिए जायजा मीटिंग की। मीटिंग में एसपी मकसूदून, एसपी हाफिज खिजर हयात समेत शहर भर के सर्कल अफसरान मौजूद थे। सीटीओ ने तमाम सर्कल अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया। मीटिंग में एक्सीडेंट, हॉटस्पॉट, ट्रैफिक कंजक्शंस, 15 कॉल्स और मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीटीओ ने मुअस्सर इन्फोर्समेंट न होने पर मुतअद्दिद डीएसपीज की सरजनिश की। सीटीओ ने मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म जारी किया। सीटीओ का कहना था कि कहीं कोई बगैर हेलमेट वन वे ट्रैफिक और लेन लाइन की खिलाफवर्जी करता नजर न आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में QR पैनिक बटन ना लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। सैयद अब्दुर्रहीम शराजी का कहना था कि एक्सीडेंट हॉटस्पॉट एरिया की निशानदही करते हुए फासले इक़दाम यकीनी बनाए जाए। सीटीओ का कहना था कि हादसा से पाक महफूज सफ़र और रोड्स अव्वलीन तरजीह है। आईजी पंजाब के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में साली ने दरपेश मसाल बारे डीआईजी ऑपरेशंस को आगाह किया, जिस पर फैसल कामरान ने इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाते हुए मौके पर अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस ने जाली निकाह, खवातीन पर तशद्दुद और हिरासा करने, लड़ाई झगड़े, जायदाद के तनाज़ात, फ्रॉड और लेन देन के तनाज़ात समेत दीगर दरख्वास्तों पर वीडियो लिंक के जरिए भी मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम जारी किए हैं। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के मबैन फासले कम करना और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। इंसाफ के मुतलाशी लोगों के लिए उनके दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। गर्मी के मौसम में नित नए डिज़ाइन और हल्के रंगों के मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बन गए। ख़ुसूसी नुमाइश में फैशन के नए रुझानात मुतारिफ करवाए गए हैं। मौसम बदलते ही खवातीन के कपड़ों के डिजाइन और रंग भी बदलने लगे। गालिब रोड गुलबर्ग में मैक्सवेल डिजाइनर वेयर के नाम से मौसम गर्मा के कपड़ों की नुमाइश का इनेकाद हुआ। नुमाइश में 2026 के नए डिजाइन नुमाया रहे। फैशन डिजाइनर मरियम उमर कहती हैं, मौसम गर्म हो तो हल्के फुल्के कपड़े जेबतन करने चाहिए। हल्के रंगों के कपड़े गर्मी की शिद्दत से बचाते हैं। मैंने लाइट कलर यूज किए हैं, प्लस मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग, बिकॉज मुझे बहुत शौक था ब्लॉक प्रिंटिंग का, तो मैंने जो मेरा शौक़ था कि मैं इस काम को करना चाहती थी, तो मैं अपनी थॉट्स मैंने पब्लिक के लिए बनाई है और आई होप कि सबको पसंद आएगी। मैंने मुल्तानी कढ़ाई पे भी काम किया है, सब हाथ हैंडमेड है। खवातीन की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। शुरका ने नुमाइश के इनाकात को सराहते हुए अपने पसंदीदा कपड़ों बारे बताया। समर में जितने भी कपड़े होते हैं, आई फील लाइक दे शुड बी वेरी ब्राइट एंड वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी कलरफुल, बिकॉज डल मौसम आपको वैसे ही आपका दिन ख़राब करता है, तो आप कलर्स भी ऐसे पहनोगे तो आपको खुद अच्छा नहीं फील होगा। तो आई फील लाइक ब्राइट कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ब्रीदेबल फैब्रिक तो बिल्कुल होना चाहिए। सीज़न के अकॉर्डिंग तो लाइट वेट ही आजकल ज्वेलरी ही मतलब समर के हवाले से पहनी जाती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अफ़गानी ज्वेलरी जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने लाइट वेट में एक अच्छी ज्वेलरी बनाना शुरू की है। समर वेयर में आई प्रेफर फ्लोरल ड्रेसेस, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, सो आई लाइक फ्लोरल कपड़े ज़्यादा, और थोड़े से लाइट कलर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मिक्स एंड मैच भी कभी कभी कूल लगता है।
और आई थिंक बहुत फ्लोरल और लाइट वेट। मौसम गर्मा में हल्के कपड़े और मुनफरिद डिजाइन न सिर्फ फैशन का हिस्सा हैं बल्कि आरामदा एहसास भी फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन एहसान कादिर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। दूसरी जानिब पहला एचएसएन कॉलेज इंटर स्कूल इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट कंबाइंड स्कूल बांग्लादेश ने जीतला। फाइनल में एचएसएन व्यूज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माजिद खान ने इनामात तकसीम किए। एचएसएन कॉलेज में खेले गए टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। यूएई और बांग्लादेश की टीमें भी शरीक हुईं। बांग्लादेश ने 5 विकेटों से फाइनल जीतने का एजाज हासिल किया। पहले खेलते हुए एचएसएन की टीम 31 ओवर्स में 129 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान खान 77 रन की इनिंग्स खेलकर नुमायां बल्लेबाज रहे। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फातेह टीम की जानिब से नईम सोबज ने 48 रन की इनिंग्स खेली। साबिक कप्तान माजिद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। माजिद खान का कहना था कि खेल कोई भी हो, जब तक स्कूल स्पोर्ट्स पर काम नहीं किया जाएगा बेहतरी मुमकिन नहीं हो सकेगी। कानून होना चाहिए कि जो भी स्कूल बनते हैं उनके साथ प्लेइंग फील्ड्स होनी चाहिए। उससे 2 चीज़ें हैं कि एक तो बच्चा खेलता है, एक बच्चा हेल्दी होता है। और जब बच्चा खेलता है और उसकी सेहत ठीक होती है तो उसकी सोच भी ठीक होती है। टूर्नामेंट डायरेक्टर उमर जमान और नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट अच्छा रहा। मौका मिला तो मुस्तकबिल में मजीद अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। ये बाकी भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ये उनको भी मैसेज जाना चाहिए कि जब तक हम ग्रास रूट्स में क्रिकेट इम्प्रूव नहीं करेंगे टैलेंट आगे नहीं जाएगा। तो ये एक हमने कोशिश की है कि ये एक बाहर से टीमें बुलाई है। बांग्लादेश, यूएई, कराची से भी टीम आई और लाहौर की जो टॉप टीमें थी सारे सब ने कम्पीट किया। इख्तितामी तकरीब में साबिक कप्तान माजिद खान के साथ साथ प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज सैयद तुर्राब हुसैन, उमर जमान, खालिद नून और आमना कामरान समेत दीगर भी मौजूद थे। मेहमानाने गरामी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर नन्ना सफल जामुन मुनफरिद जायका, कुदरती ताजगी और बेशुमार गजाई खूबियां समोए हुए है। गर्मियों के मौसम में गहरे जामुनी रंग का जामुन एक बार फिर अपनी बहार ले आया। शाखों पर झूमते जामुन गर्मियों की खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। कुदरती मिठास और हल्की सी तरशी लिए ये फल न सिर्फ जायके में मुनफरिद है बल्कि ग़िज़ायत के एतबार से भी खास अहमियत रखता है। कुदरत की बनाई हुई वैसे तो हर चीज़ फ्रूट्स या सब्जियां जितनी भी सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मौसम के साथ साथ जो है वो हर सब्ज़ी और हर जो फल है वो उसके अपने फ़ायदे हैं और बड़ी अच्छी चीज़ है। जामू जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है हर तरह से, टेस्ट के लिहाज से भी और मौसम के लिहाज से भी। इसके बड़े फायदे है। दिल का मरीज है उसके लिए बड़े फायदेमंद है। केड़ा बंदा शुगर के मैं बड़िया मेडिसिन खादियां ने, शुगर बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो रही। इसके शुगर वाले वास्ते इंज दवाई है कि मैं एक बारी खाएंगे ना मुड़ के बाद को शुगर ही आपको नजर आएगी। जामुन का सीजन अगरचे मुख्तसर होता है लेकिन इसकी मकबूलियत में कभी कमी नहीं आती। बच्चे हो या बड़े, हर उम्र के अफराद इस मुनफरिद जायके से लुत्फानंदोज होते हैं। दुकानदार का कहना है कि जामुन न सिर्फ जायके में मुनफरिद है बल्कि विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होने के बायस सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इसके फायदे बहुत अच्छे होते हैं, वैसे मैदे के लिए भी अच्छे होते हैं, जिगर पर से भी अच्छे होते हैं, सारे बात भी अच्छे होते हैं। वैसे जामुन की बेहतरीन तो बहुत अच्छी है, वैसे फिलहाल तो खाने चाहिए बंदे को। मंडी में ज़्यादा माल आता है फिर सस्ता हो जाता है, लोग लेते हैं, इसके बड़े फ़ायदे हैं। सस्ता भी हो जाता है, कभी महंगा भी हो जाता है, लोग ले जाते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। ये नन्ना सा फल अपने अंदर न सिर्फ मुनफरिद जायका, कुदरती ताजगी और बेशुमार ग़िज़ाई खूबियाँ समोए हुए है बल्कि गर्मियों की एक खूबसूरत पहचान भी बन चुका है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। लाहौर डीएचए में फलों के बादशाह आम का शानदार फेस्टिवल मुनाकिद हुआ जिसमें 140 से ज़्यादा इकसाम के आम डिस्प्ले किए गए। शहरियों ने तरह तरह के मैंगो खूब इंजॉय किए। मुल्क के सबसे बड़े मैंगो फेस्टिवल में 140 से ज्यादा इकसाम के आम डिस्प्ले किए गए।
जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में सिंदड़ी, सफेद चौंसा, लंगड़ा, करेला आम और मक्खन डिस्प्ले थे, जबकि तोतापरी, चीनी शक्कर, लेट, रटोर, दोसहरी, काला चौंसा और अलमास समेत दीगर इकसाम के स्टॉल्स भी लगाए गए। फेस्टिवल में शरीक शहरियों का कहना था कि आम ठंडे करके खाने का अपना ही मजा है। आम शेक की सूरत में हो या लस्सी की, हर हाल में पसंद है। मोर देन 140 किस्म के मैंगो हमारे अपने हैं पाकिस्तान के, और ये बहुत बड़ी बात है ये। और हमने अपनी लाइफ में इतने मैंगो नहीं देखे आज तक। यानी बचपन से लेके वही था कि चौसा खा लिया, सिंदरी खा लिया और दूसरे किस्म और हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंगो लाइक करती हूँ इस एज में भी, और ये सारा आर्मी के अंडर है और मैंने देखा है कि बहुत अच्छा मुझे यहाँ का ये सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। Came from Wazirabad to visit the mango festival at the organic village Lahore, and it's an amazing experience. I am just seeing different type of mangoes over here. मैंगो फेस्टिवल में शहरियों के लिए आम से तैयार की गई प्रोडक्ट्स, जिसमें मैंगो पेस्ट्री, केक, शेक और लस्सी खास तवज्जो का मरकज बनी रही। शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा आमों से खूब महसूस हुए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से